या वेलकम टू मैथ्स गुरु। कैसे हो बच्चों? बिंदास। लोकेशन ऑफ रूट्स का ऑल द कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब लोकेशन ऑफ रूट्स के जो 6 केसेस होते हैं, ईच केसेस पे मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिससे आपका लोकेशन ऑफ रूट्स का सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं। You can see here, if a quadratic equation x square minus m minus 3x plus m is equal to 0 and both the roots are the greater than 2. So what is the m value it will come? From here you can see x square is there. That means the coefficient of x square is equal to positive. If the coefficient of x square is equal to positive, that means this quadratic equation mouth is upward. Mouth is upward, that means we can draw the diagram like that. Because already mentioned here both the roots, so must be two roots are there. And what they are saying, both the roots are greater than 2. If both the roots are greater than 2, so our 2 value will come here. So what the cases will come here? First case you can see, two roots are there, that means the discriminant is greater than 0. So first case we can take, discriminant is greater than equal to b 0. So b square minus 4ac. So m minus 3 whole square minus 4 into m and a value is equal to 1 only. This is greater than and equal to b 0. So what the value will come? M square plus 9 minus 6m minus 4m greater than equal to b 0. So m square minus 10m plus 9 greater than and equal to b 0. Now you can try to be split this one. So we can split like that. M square minus 9m minus m plus 9 greater than and equal to b 0. We can take here the m common. So m minus 9 minus 1 common. So m minus 9 greater than equal to b 0. So m minus 1, m minus 9 greater than equal to b 0. Now we can apply the baby curve method. So according to the baby curve method, we can write 1 and 9 here. So if we can take the greater than 9, so this is going to become a positive. Less than 1, again positive. Between 1 to 9, this value will come negative. That means our m value is less than equal to 1 or m is greater than equal to be 9. Here this also we can write like that. M belongs to minus infinite to 1 close interval union 9 to infinite. So one cases we can find because the two roots, that means discriminant is greater than 0. Now we can come to the other case. Other case will come here. You can see at 2. So f of 2 value will come this side. That means the f of 2 is the positive. So f of 2 देखो आप यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कैसे आप यहाँ पे लिखोगे? 4 minus m minus 3 है ना, आप ऐसे लिखो है ना, f of 2 is greater than 0. x के प्लेस पे मैंने क्या रखा? 2 वैल्यू पुट कर दिया है, तो m minus 3 into 2 plus m greater than 0. देखिए आप 4 माइनस मल्टीप्लाई करो यहां से 2m minus 6 minus and this become the plus minus minus plus 6 plus m greater than 0. So 10 minus m greater than 0 means m value less than 10 will come from here. So what we can take? First of all, we have taken that this is the case 1. Next we have taken the case 2 and third case will come here. The critical point which we can write the x equal to minus b by 2a. So here m minus 3 will come. M minus 3 by 1, this value
must be greater than 2, so we can write this value greater than 2, so m value greater than 5. So now we can get these three cases. With the help of three cases we can try to find the what is the common value. क्या common value यहाँ पे आने वाला है? देखिए आप यहां पर से क्या वैल्यू आ रहा है, m जो है हमारा ग्रेटर देन 5 है, यहां पे क्या m वैल्यू ग्रेटर देन 9 है, यहां पे क्या वैल्यू m वैल्यू लेस देन 10 है. सो फ्रॉम 1 2 3 1 2 and 3 we can write here m belongs to 9 close interval to 10 open interval we can write. So if the condition will given कि greater than 2, कि both the roots are the greater than 2, this is only possible if हमारा जो m वैल्यू है वो 9 से 10 के बीच में आएगा. अब चलो हम लोग देखते हैं दूसरे केस की तरफ. So now another case is there, both the roots are smaller than 2. अब दोनों का दोनों जो रूट्स हमारा है ना वो स्मॉलर देन 2 होगा. तो देखो कंडीशन क्या आने वाला है. Both the roots are smaller than 2. If you can write maybe like that. So 2 will come here. Discriminant, 2 roots are there, so must be greater than equal to be 0. So what we have seen into the last case, this one m is less than equal to 1 or m is greater than equal to be 9. And in this case what it will come, f of 2 is greater than 0. F of 2 is greater than 0, so like a last case only. So we can keep this value there. So 4 minus m minus 3, अब यहां पे 2 आप पुट कर दो, 2 plus m greater than 0. 4 plus 6 10 minus m, सेम टू सेम जो पहले वाला हमारा केस था वही केस आ गया है. लेकिन अभी एक चीज यहां पे डिफर होने वाला है. क्या वो डिफर होने वाला है? आप देखो यहां पे ये क्या बोल रहा है कि 2 का जो वैल्यू है ना वो बड़ा है. यदि 2 का वैल्यू बड़ा है यहां पे तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, m माइनस 3. सोचो लास्ट वाले केस में क्या था, ये m माइनस 3 जो है ना वो 2 से बड़ा था. अब क्या होगा, 2m माइनस 3 से बड़ा होने वाला है. 2 is greater than m minus 3. If the 2 is greater than m minus 3, so that means m is less than 5. So here we can get the second case, third case. देख के बताओ क्या कुछ कॉमन आएगा यहां से. यहां पे m जो है छोटा है 10 से, m छोटा है 5 से, m छोटा है 1 से, तो ग्रेटर देन का केस तो सवाल ही नहीं उठता है. तो यहां पे हम लोग देखोगे इसको और इसको कंबाइन करके तो हमारा वैल्यू आने वाला है m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट लेस देन 1. मीन्स यहां पे हमारा जो m का वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू बी 1 एंड ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट केस विल कम. तो ये हमारा कौन सा केस हुआ, दूसरा केस हुआ. नाउ वी कैन कम टू सी द थर्ड केस. सो आप देखो थर्ड केस हमारा आने वाला है 2 बिटवीन द रूट्स. पहला केस में मैंने क्या लिया, दोनों रूट जो है हमारा 2 से बड़ा है. दूसरे केस में क्या लिया, दोनों रूट जो है 2 से छोटा है. अब क्या बोल रहा है, 2 का जो वैल्यू है हमारा वो दोनों रूट्स के बीच में आएगा. या नाउ वी कैन सी द थर्ड केस. As the 2 roots are there, so diagram is like that only. And because the 2 roots are there, so for the 2 roots, first case as it is, discriminant is greater than equal to be 0. तो जैसा हम लोगों ने फाइंड आउट किया, अब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 और m ग्रेटर देन इक्वल टू भी 9 होगा. अब यहां पे आ जाओ, 2 बिटवीन द रूट्स, सो 2 यहां पे आ गया हमारा. इफ 2 यहां पे आएगा तो क्या होने वाला है हमारा, f of 2 का वैल्यू
लेस देन 0 होगा। अब 2 के वैल्यू को पुट करो वहां पे इक्वेशन में आप डालते हो तो देखो क्या आएगा, 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m और लेस देन 0। सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस 2m एंड m, सो माइनस m आ गया, यहां पे 10 आ गया, मीन्स 10 माइनस m लेस देन 0। तो m का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 10। सो m का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 10 आ गया। इसके साथ कंबाइन करो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2। बाय द वे लेस देन 1 उससे तो कुछ कॉमन आने वाला नहीं है। ग्रेटर देन 9 और ये ग्रेटर देन 10, यहां से जब आप कंबाइन करोगे तो कॉमन वैल्यू आपका आएगा यहां से m वैल्यू ग्रेटर देन ओपन इंटरवल 10 टू इनफाइनाइट। सो 2 दोनों रूट्स के बीच में तभी आ सकता है जब m का वैल्यू हमारा 10 से बड़ा होगा। ये हमारा थर्ड केस था। अब चलो हम लोग देखते हैं यहां पे फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है हमारा, एग्जैक्टली 1 रूट्स जो है ना वो 1 से 2 के बीच में लाइज करेगा। ये वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है। क्यों? क्योंकि 3 से 4 बार क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस में आ चुका है, एक बार एडवांस में भी आया है इस मॉडल से क्वेश्चन। फर्स्ट केस तो हम लोग एज इट इज लिखने वाले हैं यहां पे, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी 0। यदि इक्वल टू बी 0 है तो आपका m माइनस 1, दैट मीन्स द m वैल्यू क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और m वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी 1। ये तो कांस्टेंट केस है, फर्स्ट केस ऑनवर्ड। आइए आप क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 1 टू 2। सो मान लो यहां पे एक रूट है, एक रूट यहां पे है, या तो ये केस हो सकता है या अदरवाइज ये केस हो सकता है, यहां पे 1 यहां पे 2। यदि यहां पे 1 है तो आप देखो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या होने वाला है, पॉजिटिव। f ऑफ 2 का वैल्यू क्या होने वाला है, निगेटिव। यहां पे 1 है तो क्या होगा, f ऑफ 1 निगेटिव और f ऑफ 2 क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। अब यहां पर आप देखो ये वाला केस दोनों केस को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वैल्यू क्या आने वाला, लेस देन 0 ओनली। तो डायरेक्ट आप यहां पे लिखो f ऑफ 1 f ऑफ 2 लेस देन 0। 1 का वैल्यू पुट करो वहां पे, 1 माइनस m माइनस 3, फिर से यहां पे 1 और क्या है प्लस m। 2 का वैल्यू पुट करो, ये डायरेक्टली अदर केसेस में ऑलरेडी देख चुके हैं। f ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, 10 माइनस m आ रहा है, तो 10 माइनस m लेस देन 0। यहां पर देखो यहां पे कैंसिल होगा 4 और क्या आ गया, 10 माइनस m लेस देन 0। m का वैल्यू ग्रेटर देन 10, m का वैल्यू ग्रेटर देन 10। फिर से इसको कंबाइन करो, देखो पिछला वाला एक केस रिपीट हो रहा है। यदि एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 1 टू 2, सो ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो गया, m इज लेस देन 10, m इज लेस देन 10 एंड m इज greater than equal to be 9. So once we can take the common from here, so m value belongs to 9 पे देखो आप क्या होगा, क्लोज इंटरवल। 10 पे क्या होने वाला है, ओपन इंटरवल। सो ग्रेटर देन इक्वल टू बी 9 एंड लेस देन 10 हमारा यहां पे आएगा। तो ये हमारा कौन सा केस हुआ, फोर्थ केस, और ये इंपॉर्टेंट केसेज है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ केस। तो फिफ्थ केस हमारा ये रहा, बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन 1 टू 2। बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन 1 टू 2। यहां पे कैसे डायग्राम बनेगा, आपको करना है क्या ना, इसमें पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद केसेस लिखना है, स्टार्ट करना है। By the way, they are saying that both roots means discriminant are greater than equal to be 0. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब 2 रूट्स है तो इक्वल टू बी क्यों ले रहे हैं, दोनों रूट सिमिलर भी हो सकता है, इसलिए यहां पे हम केस को क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू बी 0। कंडीशन m is greater than equal to be 9 and m is less than equal to be 1। हमारा ये फर्स्ट केस आ गया। ग्रेटर देन 1, यहां पे देखो पॉजिटिव, यहां पे देखो पॉजिटिव,
इसका मतलब है क्या, इसको ले लो फर्स्ट केस और देखो सेकंड केस में क्या आएगा, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ 1 वैल्यू इसके पहले वाले केस में फाइंड आउट किया था हमने, यहां पे वैल्यू आ रहा था क्या 4, एफ ऑफ 2 का क्या आ रहा था वैल्यू 10 माइनस m, तो ये लो 10 माइनस m एंड ग्रेटर देन 0, m का वैल्यू क्या हो गया लेस देन 10 आ गया, m का वैल्यू लेस देन 10। एक और मजेदार केस क्या आने वाला है यहां पे, आप देखो ये जो पॉइंट है यहां पे क्रिटिकल पॉइंट है, ये 1 एंड 2 के बीच में आएगा, यदि ये 1 एंड 2 के बीच में आएगा तो माइनस b बाई 2a, उसका वैल्यू क्या आ रहा है यहां पर से m माइनस 3, यदि m माइनस 3 आएगा ये वैल्यू तो m माइनस 3 बाई 2 हम लोग लिखेंगे, और इसका वैल्यू कहां से बीच में 1 से 2 के बीच में, यदि ये 1 से 2 के बीच में तो इसका वैल्यू 2 आ गया, m माइनस 3 इसका वैल्यू क्या है आपका 4 आ गया, तो m का वैल्यू 5 और 7 के बीच में आ गया, ये हमारा थर्ड केस हुआ। एक चीज मुझे देख के बताओ तो ये ऑल द 3 केसेस में कुछ भी कॉमन आने वाला है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है। ये 5 से 7 के बीच में ये लेस देन 10 है, ये क्या है ग्रेटर देन 9 है, ये लेस देन 1 है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जहां पे हमें वो कॉमन मिल जाए। इसमें और इसमें क्या कॉमन है क्या, m इज लेस देन 10, सोचो यदि m इज लेस देन 10 तो ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा कॉमन आने वाला है, तो अब इसको छोड़ दो तुम, अब इसमें और इसमें में आ जाओ, इसमें क्या है m इज लेस देन 1, लेस देन 1 में कोई कॉमन ही नहीं आने वाला, देखो कोई कॉमन नहीं आने वाला, m इज ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, दैट मीन्स फ्रॉम 1 to 3 एंड 3 जब हम कंबाइन करेंगे तो हमने क्या पाया कि m बिलोंग्स टू 5, m का कुछ भी वैसा वैल्यू नहीं आ रहा है जिसमें हम बोल सकते हैं कि बोथ द रूट्स आर बिटवीन 1 to 2, क्योंकि ऑल द 3 केसेस में कुछ भी कॉमन केस नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एंड लास्ट केस हमारा है। अब ये पहला वाला के देखना 5th में और 6th में थोड़ा सा बोथ द रूट्स बिटवीन 1 to 2 था, अब क्या होगा यहां पे हमारा जो लास्ट केस आने वाला है 6th केस, 1 and 2 लाइज बिटवीन द रूट्स, कुछ भी इन केसेस में याद रखने का जरूरत नहीं, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखोगे मैंने बताया है, पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, पहले तो पहला वाला केस लिख डालो यहां पे, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और m इज लेस देन इक्वल टू भी 1 है। अब देखो 1 पे है तो क्या होगा f ऑफ 1 लेस देन 0, f ऑफ 2 लेस देन 0, सो वी कैन राइट हियर f ऑफ 1 f ऑफ 2 लेस देन 0 है, तो क्या लेस देन 0 हो पाएगा क्या, नहीं, यहां पे क्या होगा ये पॉजिटिव हमारा केसेज आ जाएगा, दैट मीन दिस वैल्यू आर ग्रेटर देन 0, सो दिस वैल्यू वी कैन राइट द ग्रेटर देन 0 हियर। अब ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये केस को हम लोग लिखते हैं, देखो अब यहां पे दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0 विल कम, f ऑफ 1 का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, क्या था 4 था, इसका वैल्यू 10 माइनस m, सो m वैल्यू लेस देन 10, m वैल्यू लेस देन 10, सोचो यहां पे क्या ये आएगा क्या क्रिटिकल पॉइंट हमारा केस m माइनस 3 बाई 2 वो 1 and 2 के बीच में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप सोचो 1 and 2 यहां पे आ गया, तो वी आर नॉट गोइंग टू बी कंपेयर विद द क्रिटिकल पॉइंट बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 से कंपेरिजन नहीं हो सकता है, 1 and 2 से नहीं कंपेरिजन हो सकता है, तो यहां पे हम लोग को 2 केसेज में ही बात करना पड़ेगा। सो 2 केसेज में लेते हैं, यहां पे आप देखो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी 9 एंड m इज लेस देन 10, सो m बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू बी 9 एंड लेस देन 10,
तो चलो मैंने इस वीडियो में आपको एक सम लेकर के उसका 6th केस काफी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है. होपफुली ऑल ऑफ यू आर एबल टू बी अंडरस्टैंड. चलो ओके बाय ऑल ऑफ यू.